ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ سری نگر کے سول لائنز میں 3 دہائیوں بعد 8 محرم کو عزاداری کا جلوس برآمد کرنے کی اجازت، پرامن طریقے سے عزاداری کی اپیل۔ عمر عبداللہ نے لال چوک کے راستے محرم کے جلوس کی اجازت دینے کے حکومت کے فیصلے کا کیا خیر مقدم۔ میر وائز عمر فاروق کی خانہ نظر بندی کے خاتمے، عیدگاہ اور جامع مسجد میں نماز کی اجازت کا کیا مطالبہ۔ اور ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بشارت قیوم نے ضلع سماجی بہبود کے دفتر میں کام کاج کا لیا جائزہ۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے 33 سال کے وقفے کے بعد شیعہ برادری کو سری نگر میں 8ویں محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت دے دی ہے۔ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر وجے کمار نے حکومتی فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جلوس روایتی راستے سے گرو بازار سے سری نگر کے ڈل گیٹ تک صبح 6 بجے سے جمعرات کو صبح 8 بجے کے درمیان نکالا جا سکتا ہے۔ سری نگر کے ڈپٹی کمشنر محمد اعجاز اسد نے ایک باضابطہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ شرکاء کسی بھی ملک مخالف اسٹیبلشمنٹ مخالف تقاریر، نعرے بازی یا پروپیگنڈا میں ملوث نہ ہوں اور ایسی کوئی سرگرمی نہ کریں جس سے فرقہ وارانہ اور فرقے وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو یا مذہبی، نسلی، ثقافتی اور علاقائی جذبات کو ٹھیس سے پہنچے۔ جلوس کے دوران کوئی بھی سرگرمی ریاست کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اور کسی قومی نشان یا اس کی بے عزتی نہیں کی جانی چاہیے۔ وہ اشتعال انگیز نعروں، متن یا قومی اور بین الاقوامی سطح پر کالعدم تنظیموں کے لوگوں کے ساتھ کوئی جھنڈا نہیں لہرائیں گے۔ منتظمین کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے جس سے امن و امان کے مسائل پیدا ہوں۔ اسد نے کہا کہ عوامی مفاد میں 2 گھنٹے کے ٹائم ونڈو کو حتمی شکل دی گئی ہے کیونکہ جلوس کا راستہ بڑے پیمانے پر کاروباری اور تجارتی اداروں، ٹریفک اور مسافروں کی نقل و حرکت پر محیط ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جمعرات کو 3 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد لال چوک کے راستے محرم کے جلوس کی اجازت دینے کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق کی خانہ نظر بندی کے خاتمے، عیدگاہ اور جامع مسجد میں نماز کی اجازت کا مطالبہ کیا۔ پارٹی صدر دفتر نوائے صبح کمپلیکس میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم مرحوم جلوس کی اجازت فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم محرم کے جلوس کی اجازت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ حکومت دیگر اقدامات بھی کرے گی۔ میر وائز عمر فاروق مذہبی رہنما ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جامع مسجد میں بغیر کسی روک ٹوک کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور عیدگاہ میں نماز عید پر روک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 32 سال بعد محرم کے جلوس کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پھر دیگر سرگرمیوں پر بھی روک ہونی چاہیے اور 13 جولائی کو مزار شہداء پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ جموں کشمیر میں ریزرویشن سے متعلق پیش کی گئی بلوں پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے کہا کہ اسمبلی میں 3 ممبران کی نامزدگی کے بل کی ہمارے ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے ایوان میں مخالفت کی ہے جبکہ باقی بلیں ابھی بحث کے لیے پیش نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایل جی کے ذریعے 3 اسمبلی ممبران کی نامزدگی کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جموں کشمیر تنظیم 9 ایکٹ سن 2019 کے تحت کی جا رہی ہے جس پر جلد ہی سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہونے والی ہے۔ ہم نے تو ایڈمیشن کے لیول کے دوران ہی حسنین مسعودی صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے کیونکہ جے این کے ری آرگنائزیشن ایکٹ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اس پہ تو اگلے ہفتے سے سنوائی شروع ہوگی، تو اب اس میں سیٹ نامینیشن سیٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی کیا جلدی ہے؟ سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ کرنے دیجیے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ جہاں تک پہاڑی ریزرویشن کا سوال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ راشٹریہ لوک جن شکتی کے جنرل سیکریٹری سنجے سراف نے 8ویں محرم کے حوالے سے سری نگر میں قریب 35 برس بعد
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی والی انتظامیہ کی جانب سے اجازت کو ایک نیک شگن قرار دیا۔ سنجے سراف نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ برادری کی دیرینہ مانگ تھی کہ انہیں سری نگر کے سول لائنز میں 8 محرم کو عزاداری کا اجلاس برآمد کرنے کی اجازت دی جائے، اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی والی حکومت نے اس مطالبے کو ہری جھنڈی دکھا کر ایک اچھی شروعات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں روایتی سیاست دانوں نے اس معاملے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا تھا اور اس جلوس کی آمد پر پابندی عائد کی تھی، تاہم موجودہ انتظامیہ نے ان کے اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ سراف نے کہا کہ مسلسل کانگریس، نیشنل کانفرنس اور PDP حکومتوں کے درمیان 8 محرم کو عزاداروں کے جلوس کو شہر میں پابندی عائد کی جاتی تھی، اور گزشتہ کئی روز سے اب وہ اس پروپیگنڈے میں لگے تھے کہ موجودہ حکام نے اس پر پابندی عائد کی تھی۔ آج LG صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان 124 اور 129 بچوں کے والدان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ FIR کی کاپیاں جمع کرو، یا تو میرے پاس دو، نہیں تو ایڈمنسٹریشن کے پاس دو۔ ان دونوں لیڈروں کے خلاف میں کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جو یہاں پر قتل غارت ہوا ہے، ان کے ذمہ وار یہ ہے۔ ان لوگوں کے خلاف میں جب کارروائی ہوگی، کشمیر میں یہ گندا ماحول جو انہوں نے خراب کیا تھا، کشمیر میں پیسفل ایٹماسفیئر کو دور رکھنے کا جو انہوں نے کام کیا، وہ ونس فار آل ختم ہو جائے گا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بشارت قیوم نے ایگزیکٹو افسر میونسپل کمیٹی پلوامہ اویس احمد کی موجودگی میں کلین پلوامہ سوچھ پلوامہ کے بینر تلے 15 روزہ صفائی مہم کا افتتاح کیا۔ پروگرام میں میونسپل کمیٹی کے افسروں اور اہلکاروں کے علاوہ ٹریڈرز فیڈریشن پلوامہ کے ممبران، معزز شہریوں اور اسکولی بچوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بشارت قیوم نے ایگزیکٹو افسر میونسپل کمیٹی پلوامہ اویس احمد کی موجودگی میں کلین پلوامہ سوچھ پلوامہ کے بینر تلے 15 روزہ صفائی مہم کا افتتاح کیا ہے۔ پروگرام میں میونسپل کمیٹی کے افسروں اور اہلکاروں کے علاوہ ٹریڈرز فیڈریشن پلوامہ کے ممبران، معزز شہریوں اور اسکولی بچوں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی۔ برننگ ایشو تھا جو کہ دوبکل تھا، پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ایسا ہی پڑا ہوا تھا، تو ڈپٹی کمشنر نے لاسٹ ٹائم جو ریویو میٹنگ لی تھی اس میں اس نے اریگیشن کو، ریونیو کو اس میں مدعو بھی کیا تھا اور ان کو سختی سے بھی عائد کیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لینی ہے، اور آج اسی کی کڑی چلتے ہوئے کہ آج ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو آن لائن رکھ کے آج ہم یہ اویئرنیس کیمپ بھی چلا رہے ہیں اور کلیننس بھی چلا رہے ہیں۔ مہم کے تحت ضلع کے بازاروں، ندی نالوں اور پارکوں کے ساتھ ساتھ ضلع کے دوسری جگہوں پر صاف و صفائی کا کام کیا جائے گا تاکہ ضلع پلوامہ کو آلودگی سے پاک بنایا جا سکے۔ اس مہم کے تحت قصبہ پلوامہ سے گزرنے والے دھوبی کول کی صفائی کو اہم رکھا گیا ہے۔ اس مہم کی شروعات دھوبی کول کی صفائی سے کی گئی، جس کے تحت اس کول کو مکمل صاف کیا جائے گا۔ نے آلریڈی ڈائریکشن دیا، اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بھی اہم رول ہے، شاید نائب تحصیلدار صاحب سے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے۔ اس میں آلریڈی ویل سی کے لوکیشنز کیا ہیں، اس میں جو ہیں کچھ آنریبل سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز ہیں اور ہمارے آنریبل LG صاحب کی بھی کچھ ڈائریکشنز ہیں، دے ول بی ٹیکن ان کنسیڈریشن، اور اکارڈنگلی اس کے بعد جو بھی ہمیں لگے گا الیگل ہے وہ ہٹایا جائے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بشارت قیوم نے کہا کہ انہوں نے آج ضلع پلوامہ کو سرسبز و شاداب اور صاف بنانے کی غرض سے یہ مہم شروع کی ہے، جو 15 روز تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم میں انتظامیہ کے علاوہ دوسرے شعبوں سے وابستہ لوگ اور عام لوگ بھی شرکت کریں گے تاکہ ضلع کو مکمل طور پر آلودگی سے دور رکھا جا سکے۔ 2 سال پہلے جو ایک ڈرائیو یہاں پہ ہوا تھا، میجر ڈرائیو، اس میں میجر جو انکروچمنٹ تھا وہ ریموو کیا گیا تھا۔ ابھی 2 اس میں آسپیکٹس ہیں، ایک تو کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی فردر انکروچمنٹ نہ ہو، اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور باقی بھی اس کو ڈیمارکیٹ کیا جائے گا، اور کہیں پہ اگر ہے ایڈیشنل انکروچمنٹس ہیں اور یہ کیونکہ کامن ایسٹ ہے پبلک کا، تو اس کو بھی ریموو کیا جائے گا۔ کمشنر نے مزید کہا کہ دھوبی کول نامہ نہر پر جو بھی غیر قانونی تجاوزات موجود ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جس کی وجہ سے ضلع کی اس خوبصورت نہر دھوبی کول کو مزید خوبصورت بنایا جا سکے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے ایسے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں ہر فرد کو ذاتی طور پر حصہ لینا چاہیے تاکہ سماج میں گندگی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور ایک خوشگوار ماحول کو پیدا کیا جا سکے۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ کشمیر سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔
पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन ने DPL पुलवामा में रिलीफ कैंप का इनेकाद किया। कैंप में एडिशनल DC पुलवामा फयाज अहमद, एडिशनल SP पुलवामा तनवीर अहमद और DSP DR माजिद अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ज़िले पुलवामा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से एक रिलीफ कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों, बेवाओं और मुकामी लोगों में रिलीफ तकसीम किया गया। इस मौके पर 5 बेवाओं, 8 शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों के अहल खाना और 4 मुकामी लोगों में नकदी रकम के साथ साथ कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर DSP DR ने खिताब करते हुए कहा कि आप हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। आपने भी इस महकमे में रहकर 30 साल या 40 साल अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और आज भी आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जो बाअस फ़ख्र है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज तक हम रिटायर मुलाजमान पुलिस का हर तरफ से न सिर्फ हौसला बुलंद किया, बल्कि हम में से जो लोग कई दहाइयों से परेशानी में मुब्तला थे, उनकी भरपूर माली मावनत की। अपनी तरफ से ज़िला के तमाम उन SP साहिबान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपने अपने वक्त में यहाँ बहशत SSP तैनात रहे। उन्होंने हम जितने भी रिटायर पुलिस अफसरान ये ज़िला के जितने भी लोग थे, हम अपने अपने वक्त में उन्होंने। इस मौके पर एडिशनल SP पुलवामा तनवीर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन अच्छा काम कर रहा है और जो रिटायर्ड होने वाले पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनको आप पर फ़ख्र होगा, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए एक प्लेटफार्म कायम किया है जहां से वो अपनी बात अवाम के साथ महकमे के अफसरान तक पहुंचा सकते हैं। इस मौके पर एडिशनल DC पुलवामा फयाज अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि आप रिटायर्ड होने के बाद आप लोगों का सोच रहे हैं। ये अपने आप एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि अक्सर मुलाजमीन रिटायर्ड होने के बाद घर में बैठकर आराम करना चाहते हैं। लगता था हमें कि मैं 60 साल हो गए, उस दिन आदमी सोचता था चुपचाप आ जाए। बड़ी मुश्किल से ऐसा होता था कि हमने कभी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई फंक्शन किया हो। लोअर स्टाफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। शायद हो सकता है कि ऑफिसर लेवल पे कोई रिटायर होता था तो थोड़ा बहुत फंक्शन होती थी, तो यानी हम तो सर्विस के रिटायर होते ही हम निकाल देते थे। लेकिन प्रॉन्ग के बनने से न सिर्फ आप लोगों ने अपने लिए एक आवाज़ दे दी, आप लोगों ने इन सर्विस ऑफिसर्स को भी आवाज़ दे दी। गुलाम अहमद डार, सदर पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन पुलवामा ने बात करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने तमाम रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन का हर सतह पर हौसला अफजाई की, बल्कि कई मुलाजमीन की माली इमदाद भी की गई। उन्होंने सभी ज़िला SSPs का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज तक उन्होंने हमें हर कदम हर वक्त याद रखा और वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ मुलाकात करके हमारे मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप एक दूसरे का सोच रहे हैं, तो इससे एक सबके लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं कि फाइनली जो हमारी गवर्नेंस होती है वो वेलफेयर के लिए होते हैं। बल्कि ये यकजहती का मुजाहरा है कि हम आवाम और अपने रिटायर्ड साथियों के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रांत के मंशूर में सरफहरिस्त जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के रिलेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस मौके पर चेयरमैन पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन गुलाम हुसैन जरगर ने बात करते हुए कहा कि आज हम पुलिस में काम करने वाले नौजवानों के साथ साथ अवाम की मदद के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि रिलीफ कैंप नहीं बल्कि हम अवाम के साथ एकजहती का मुजाहिरा कर रहे हैं। मुनसिफ TV के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। कश्मीर में मेवा सनत से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं और हर साल हज़ारों की तादाद में मेवा गाड़ियाँ बैरूनी ममालिक भी जाती हैं। आज शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामुल्ला के सोपोर की फ्रूट मंडी से बांग्लादेश के लिए सेब की गाड़ियों को रवाना किया गया। इस दौरान फ्रूट मंडी से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स का कहना था कि हम काफ़ी खुश हैं और हमको उम्मीद है कि इन साल हमारा कारोबार अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें तो फ्रूट मंडी सोपोर को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है।
आज पहली गाड़ियाँ यहाँ से बांग्लादेश के लिए छोड़ी है, तो आगे भी इंशाल्लाह चालू रहेगा। और रोवर से मैंने कल भी अपने इसमें रिक्वेस्ट की थी, कोशिश करें जितना मतलब हो सके। अभी हमारा यहाँ पे एक वैरायटी रेड डिलीशियस नाम से आ रहा है, तो उसका पैकिंग कोशिश करें कि वुडन बॉक्सेस में ही करें, क्योंकि कार्डबोर्ड बांग्लादेश नहीं पहुंच पाता है, तो अगर वुडन में रहेगा तो उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी लोकल स्टेशंस के लिए ये कार्डबोर्ड ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के लिए स्पेशली वो वुडन बॉक्स का ही इस्तेमाल करें। उसका इनिशिएटिव हुआ है, आज शुरुआत है उसकी। अल्लाह करे कि ये शुरुआत हमारे आने वाले सीज़न के लिए अच्छी साबित हो, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, जो कि एक्सपोर्ट माल हम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन हो जाए और अच्छी इम्प्रूव हो जाए, ताकि वहाँ से जो जितने भी हमारे लोड रहे इनको ज़्यादा। शादाब अदनी फोरम इंदिरागाम की जानिब से आज शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के हाईगाम में हुसैनी मुशायरा महफिल का इनेकाद किया गया। इसमें वादी के मशहूर और मारूफ अदीब और शायरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग हजरात ने शमूलियत की और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान प्रोग्राम के एक मुंतज़िम ने कहा कि शादाब अदबी फोरम लगातार नौजवानों के लिए काम करती है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अदब के साथ जुड़ें। शादाब अदबी फोरमन के तकरीबन वनिस तमत 50 तम शायर हजरात यम जरा गुमनाम तम अनिल ब्रोह को तम दित स्टेज वनकस यम तुम पान वनकस वुचान अत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ बड़ कोहन मशक शायर अत। शादाब अदबी कल्चरल फोरम अंदरगाम, इनकी तरफ से ये पहले ये बावर कराना चाहूँगा कि वादी के तूल अर्ज़ में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के अदबी प्रोग्राम्स ये अंजाम देते हैं और इसका एक एहतमाम करते हैं। यहाँ भी हाईगाम के मुतवस्त इलाके में यहाँ इमाम बाड़ा जदीद हाईगाम में इन्होंने एक हुसैनी मुशायरा का इनेकाद किया हुआ है। यहाँ पर आज पुलवामा में पहली बार नाइट खेलों की शुरुआत के तहत आज कबड्डी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में पहली मरतबा रात के दौरान खेलों का आगाज़ किया गया था। कबड्डी टूर्नामेंट का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारुत क़य्यूम ने किया। कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और महकमे खेल कूद ने मुश्तरका तौर पर किया था। कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत नशा मुक्त भारत अभियान मुहिम के तहत की गई थी, जिसमें ज़िले पुलवामा के सभी तहसीलों के बच्चों ने शिरकत की। इस नाइट कबड्डी टूर्नामेंट में ज़िले पुलवामा की 8 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का इख्तितामी मैच पुलवामा बनाम मेट्रो और लाहौर की हंटर्स के दरमियान खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने बेहतरीन पेश खेल करके हाज़रीन का दिल मोह लिया। खेल के दौरान खिलाड़ियों में काफ़ी जोश नज़र आया और उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारुत क़य्यूम और महकमे खेल कूद के ज़िला अफसर जगदीश राय शर्मा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट मज़ीद मुनक़्क़िद होने चाहिए ताकि नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में मदद मिले, साथ ही नौजवान मनशियात और दीगर बुरी चीज़ों से दूर रहें। ने जो इनिशिएटिव लिया बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ताकि ये जो कबड्डी गेम है ये हमारी कश्मीर की गेम है। अगर हम देखा जाए कश्मीर जब भी मेले होते तो हम यहाँ पे गांव-गांव में कबड्डी खेलते थे। ये एक अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। इससे जो है कि अभी जो यंग टैलेंट है वो बाहर आ जाए। हम यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट हो। वो भी हम बात करें ड्रग्स की, हमारी जो यूथ है वो भी ड्रग की ओर जा रही है। हम चाहते हैं कि वो जो यूथ है वो जुड़ जाए स्पोर्ट्स से, ताकि उनके लिए वो सही रहेगा। हम ये यूथ सर्विस सपोर्ट्स ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, हम इनके बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करवाया हमको बहुत अच्छी तरह से, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट किया है। जो ये आजकल ये ड्रग जो अवेयर ज़्यादा है, अगर ये लड़के ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इनसे दूर रहेंगे। इसमें इस गेम को देखते हुए हमें देखते नौजवानों में बच्चों में यूथ में बहुत सारा यूथ है, वो चाहते हैं इस किस्म की टूर्नामेंट हमेशा आगे के लिए भी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशारत क़य्यूम ने ज़िले समाज बहबूद के दफ्तर के साथ साथ दीगर दफातर का जायज़ा लिया, जहाँ उन्होंने कामकाज और महकमे की तरफ से ज़िले के ज़रूरतमंद नादिर और गरीब लोगों को फ़राहम की जा रही खिदमात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। DC ने महकमे समाजी बहबूद के अफसरान और दीगर एहलकारों पर जोर दिया कि वो महकमे के तमाम विंग्स के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी के साथ एक जामे और फ़ाल अंदाज में काम करें, ताकि ज़िले में तमाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और फ़ायदेमंदों पर मबनी स्कीमों के मौसर नफाज को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने अफसरों से समाजी बहबूद की तमाम स्कीमों के तहत 100% कवरेज पर खुसूसी तवज्जो देने को भी कहा। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने
बाल आश्रम पतिल बाग पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने बेसहारा यतीमों को सरकारी बोर्डिंग, क़याम व ताम और लाजमी मेयारी बामानी तालीम फराहम की जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। बशारत क़य्यूम ने आश्रम के अमले को हिदायत दी कि वो मुनासिब सफाई सुथराई और बच्चों को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बटंगू इलाके में गुज़िश्ता शाम एक खातून को उसके सगे बेटे ने चाकू घोंप कर ज़ख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम हाजरा बेगम ज़ौजा गुलाम मोहिउद्दीन डार साकिना बटंगू अनंतनाग उम्र 50 साल नामी खातून को उसके सगे बेटे ने चाकू से हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी खातून की जल्द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया, जहां खातून का इलाज व मुआलजा जारी है। ताहम डॉक्टरों के मुताबिक ज़ख्मी खातून की हालत मुस्तहकम है। दूसरी जानिब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हाजरा के बड़े बेटे मोहम्मद अमीन ने बताया कि बुध की शाम हाजरा बेगम का सबसे छोटा बेटा जावेद अपने बड़े भाई मोहम्मद अमीन के घर में दाखिल हुआ, जहां उसने अपनी पहले भतीजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हाजरा बेगम ने मुदाखलत की और अमीन की बेटी को बचा लिया। जावेद फिर अपनी मां पर हमला करने लगा। उसने ज़बरदस्ती अपनी मां को पकड़ लिया और अपनी मां को उसके पेट में चाकू से घोंप दिया। उन्होंने कहा कि हाजरा मौके पर ही गिर गई, लेकिन जावेद ने अपनी मां को भी नहीं उठाया और उसे देखता रहा और उसके पेट से उस वक्त खून रिस रहा था। खेलकूद की सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे माइल हों ताकि वो मनशियात की लत से दूर रहें। इसी ज़िम्न में आज वुलर फाउंडेशन सोपोर और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के इश्तराक से कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और इसमें क्लस्टर लेवल इंटर स्कूल की मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद है कि हम बच्चों को खेलकूद के मौके फराहम करें और ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी मुल्क का नाम रोशन करें। क्लस्टर लेवल पर एक कबड्डी मुकाबले का एहतमाम किया है, जिसमें हमारे क्लस्टर से वाबस्ता 42 के करीब से स्कूल है। उनमें से 12 स्कूल इस कबड्डी के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। इसका बुनियादी यह है कि एक जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स है, ट्रेडिशनल जो हमारा सपोर्ट्स का फील्ड है, उसको फरोग दिया जाए, क्योंकि हम लोग अक्सर बेशतर आजकल के दौर में वॉलीबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमने सोचा कि हमारी जिम्मेदारियां हैं कि बहुत से बच्चों की दिलचस्पी इस गेम के साथ भी है, इस गेम को भी फरोग देने की कोशिश की जाए और बुनियादी तौर पर इस गेम को और जिस तरह की दूसरी गेमों को फरोग देने के हवाले से हमारा यही मकसद होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी तरह एक तो फिजिकली फिट रहे। Seeing the drug menace which is around us and which is engulfing the whole society in particular, and generally the whole society, in particularly our kids. So an initiative has been taken by Wooler Foundation in collaboration. ज़िले किश्तवाड़ के पाडर हलके में भारतीय जनता पार्टी कारकुनान ने एसटी का दर्जा मिलने पर जश्न मनाया। लोकसभा में एसटी तरमीमी बिल पेश करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और साबिक़ वज़ीर व बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा के तय इजहार तशक्कुर करने पर पाडर में भारतीय जनता पार्टी का जश्न मनाया गया। पहाड़ी कबीला समेत 4 कबाइल की एसटी ज़ुमरे में शमूलियत में ज़िले किश्तवाड़ का हलका पाडर भी शामिल है। पाडर जो कि अब एक अलग हलका बन गया है। पाडर के लोगों की 5 दहाइयों से पहाड़ी कबीले की जारी जद्दोजहद रंग लाई, जो कि ख़ुद को शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किए जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सरहदी ज़िले कुपवाड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर कलारूस नामी एक गांव में सदियों पुरानी एक पहाड़ी जिसको सतबर नाम से जाना जाता है, उसके बाईं तरफ थोड़ी सी दूरी पर एक गार है जिसको कलारूस केव्स कहा जाता है। सतबर कलारूस एक बड़ा पत्थर है जिसके साथ होल है जो दरवाजे की तरह लगता है और ये एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सरकारी नज़रों से दूर है। सतबीर को देखने के लिए आए कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि सतबीर नामी इस पहाड़ी का जिक्र हमने बचपन से सुना है। ये एक वाक़या और कदीम तरीन एक बड़ा पत्थर है जो कि 7 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है।
कलारूस सतबिर एक सियाहती जगह है लेकिन सरकारी नज़रों से ओझल है। यहाँ आने के लिए सड़क राबता नहीं है, गाड़ियों को करीब 1 किलोमीटर दूर रखना पड़ता है, जिस वजह से सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार और महकमे टूरिज़्म को कलारूस सतबिर को सियाहती नक्शे पर ला जाने का मुतालिबा किया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम गई, पतली और वो हमने अच्छा महसूस किया और फिर हम जब आगे गए हमने केव भी देखी तो सुध भाषा वारिया ठीक है, लेकिन ऐसे केव अंदर गसित की तिकाज लाइट हंद प्रॉब्लम तिकाज तथ मशीन अंदर लाइट की तो खौफ ही बासान ना इस अंदर ते वो बिकॉज हम इसीलिए आए थे कि हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़ें यहाँ से। कि सतबार वारिया असल जाया कि बाकी टूरिस्ट प्लेसेस लुकन पज यूर लुकन पज यम चीज़ एक्सप्लोर कर, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू एक्सप्लोर द नेचर। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम गई, रोड उसने असल पड़ की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम गई। गुज़िश्ता हफ्ते से वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहने के नतीजे में तरच हंदवाड़ा में गुज़िश्ता शाम तेज़ आंधी और शदीद बारिशों के नतीजे में कई रिहायशी मकानों की छत और खिड़कियों के शीशों को नुकसान होने के साथ साथ अखरोट, फ्रूट्स और दीगर खड़ी फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों सफ़ेदी के दरख्त उखड़ गए हैं। जुमेरात की लसूब इंतज़ामिया की एक टीम तहसीलदार की सरबराही में तरच पहुंची और यहां गुज़िश्ता शाम तेज़ आंधियों के नतीजे में हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। दरी असना मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालिबा किया है कि तेज़ आंधियों से शदीद नुकसान पहुंचा है और एक पसमानदा गाँव है, यहाँ के लोग गरीब हैं, उन्हें नुकसानात का तखमीना लगा कर उन्हें मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मंजूर अहमद मागरे जो कि एक गरीब शख्स था जिसको पिछले साल PMY स्कीम की मदद से एक मकान तामीर किया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस गरीब के मकान का छत भी उड़ गया है। इस तरह से कई दीगर रिहायशी मकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। उन्होंने हुकाम से मुतालिबा किया है कि उसके उन्हें मुआवजा दिया जाए। वारिया तूफान आव, अगर तुम वो जंगल कोता फ्लड वोत पत लूकन चाव अंदर, फ्रस फुट, डोन कुल पे मकानों पे, फ्रस पे मकानों पे। हजरत खुदा सुन फजल ब्रांत रोज आए सबन पे तहसीलदार साहब आव, नायब तहसीलदार साहब आव, DDC ज़हूर साहब आव, क्या इलाकस पे कोता गरीब बिचार वो सोन ये मेहरबानी रिक्वेस्ट LG साहबस DC साहिबा आम मैडम साहिबा जोड़ के हम इसको मेहनत करते इस बेचारी के लिए कि इसको कुछ इमदाद होना चाहिए। तो मेरी आपकी इस चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि वो इसमें बाज़ाब्ता तौर कंपनसेशन बनाए उन लोगों के लिए जिनके मकान टूटे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मेरी आपकी इस चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुदबाना गुजारिश रहेगी कि वहाँ पर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए और उनको बाज़ाब्ता तौर कंपनसेशन मिले। ज़बरदस्त नुकसान। 14वीं किस्त की रिलीज़ के मौके पर PM के SAN के 8.5 करोड़ मुस्तफ़ीदीन के हक़ में 17,000 करोड़ रुपए महकमे ज़राअत ज़िला गांदरबल ने ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल के ताउन से मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िले सतह पर एक तकरीब का अहतमाम किया। इस तकरीब की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल रणधीर शर्मा और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल फारूक अहमद सूफ़ी के साथ की। महकमे के फील्ड फंक्शनरियों के अलावा ज़िले के 50 से ज़ायद किसानों ने मज़कूरा तकरीब में हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम पूरे ज़िले में महकमे के मुख्तलिफ ज़रई इलाकों में भी मुनज़्ज़म किया गया था, जहाँ किसानों की काफ़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़िले के 22,000 से ज़्यादा अहल किसान के तहत रजिस्टर्ड PM के SIN है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। श्रीनगर के सिविल लाइंस में 3 दहाइयों बाद 8 मुहर्रम को आज़ादारी का जुलूस बरामद करने की इजाज़त, पुरअमन तरीके से आज़ादारी की अपील। उमर अब्दुल्लाह ने लाल चौक के रास्ते मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने के हुकूमत के फैसले का किया खैर मकदम। मीर वाइज उमर फारूक की खाना नज़रबंदी के खात्मे, ईदगाह और जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त का किया मुतालबा। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशारत क़य्यूम ने ज़िला समाजी बहबूद के दफ्तर के कामकाज का लिया जायज़ा। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।